Hello dear viewers, today our topic will be magnetic properties of solids. It's for class 12 from chapter 1st, solid state. So what these magnetic properties are associated with or what the magnetic properties mean. We will discuss this in a short while. Coming to that, what is magnetic behavior of a solid? We will first talk about this. What is magnetic behavior of a solid? So, the magnetic properties of solids, generally, if we talk of magnetic properties of solids, the magnetic nature of solids. The magnetic nature of solids arises from magnetic moments. The magnetic properties in solids arise from magnetic moments. And these magnetic moments are due to electrons present in them. Electrons present in them. So how this magnetic field or magnetic property of a solid gets generated, I will show you that. We will talk about this. So I have told you the magnetic properties in case of solids. These arise due to magnetic moments. The magnetic moment is because of the electrons present. So an electron in a solid behaves as a small magnet and produces magnetic field or magnetic property by two ways. First way is that orbital motion. First thing is that orbital motion of electron around nucleus. Orbital motion of electron around nucleus. So I am talking about it, how the magnetic property of a solid behaves as a magnet. That is because of unpaired electrons or electrons present in them. So orbital motion, number first is orbital motion of electron around nucleus, and number second is spin of electron about its own axis. So the magnetic moment associated with an electron is due to orbital motion of electron around nucleus, and number second, spin of electron around its own axis. So I will represent this by a short diagram. You will see it. So suppose this is nucleus of an atom. So let me call it as nucleus of an electron, nucleus of an atom. So around this nucleus we have shells. In the shell, suppose this E is electron. So let the direction of magnetic moment be this. This is magnetic moment. So ये हमारे पास है magnetic moment. ये electron है, and the center of this atom is present the nucleus. One thing, orbital motion. What this orbital motion means? ये orbital motion क्या होती है? अगर ये electron इस shell में, इस nucleus के around आसपास motion करे, that is called as, क्योंकि इसका अपना, इस electron का अपना orbit है, तो around the nucleus अगर ये मोशन करता है, that is called as orbital motion. उसकी वजह से magnetic character develop होता है एक solid में. Number second, so this is, I will write down here, this is nucleus of an electron. This is nucleus, this is electron, which is in a state of orbital motion around this nucleus. And number second, I have written down here, there is spin of electron about its own axis. This is for this number second, how to generate magnetic moment. So this is nucleus, ये nucleus है atom का, और इसी nucleus के आसपास ये हम observe करते हैं. This is the direction for magnetic moment. So this is direction of magnetic moment, और ये यहाँ पे nucleus है. अगर यही इलेक्ट्रॉन अपने ही
एक्सिस पे स्पिन करे तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट अराइज होता है। सो दिस मैग्नेटिक मोमेंट ये मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेटॉन्स। This is measured in units called as Bohr magnetons and it is represented by mu b. So अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम का, एक एलिमेंट का कैलकुलेट करना है, you can calculate it by the formula mu b equal to root of n into n plus 1. ये n जो होता है हमारे पास is number of unpaired electrons. सो बात यही है, अगर हमने देखना है मैग्नेटिक मोमेंट तो ये मैग्नेटिक मोमेंट खाली होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सो अगर हम इस मार्कर की बात करें, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बट इफ दोज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अगर पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। सो अगर इस मार्कर की हम बात करें, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एज वी नो दिस कंसिस्ट ऑफ एटम्स, तो ये भी एटम्स है, बट ये मार्कर जो है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा कब, जब इसमें प्रेजेंट होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो मैंने दिखाया आपको कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपने मेजर करना है तो यू कैन मेजर इट बाय और यू कैन कैलकुलेट इट बाय द फॉर्मूला म्यू बी इज इक्वल टू रूट ऑफ n इंटू n प्लस 1। आई हैव रिटन डाउन हियर जो n हमारे पास होता है it is number of unpaired electrons. So एक सिंपल सी चीज यहां से बता दूं कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, the more the number of unpaired electrons present in a material, in a solid, the more its magnetic behavior will be. इसके पास ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। So इन दो चीजों की वजह से क्या होता है, इन्हीं की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है सॉलिड में। सो बात करते हैं आगे। अब अगर हम एक सब्सटेंस को, एक सॉलिड को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू थिंग्स, वो सब्सटेंस या ऑल द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। तो इन दो चीजों की वजह से जो सॉलिड सब्सटेंसेस है, हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस को हम 5 ग्रुप्स में या 5 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हम आगे देखेंगे। मैंने आपको, आई विल टेक ए रिव्यू ऑफ दिस। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो होती है, दीज आर ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट्स। ये होती है मैग्नेटिक मोमेंट्स की वजह से, और ये मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या ये मैग्नेटिक मोमेंट्स आ जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सॉलिड। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक सॉलिड में, उसकी वजह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या मैग्नेटिज्म को? तो 2 तरीके हैं। वन इज ऑर्बिटल मोशन। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि एक सॉलिड में मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में आ जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन करे अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां जनरेट होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। नंबर सेकेंड, दूसरी जो चीज है दैट इज अगर यही इलेक्ट्रॉन, दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज इलेक्ट्रॉन, अगर यही इलेक्ट्रॉन स्पिन करे अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो वहां भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो सकता है। सो अगर हम सॉलिड्स को, आई विल discuss this topic more. So अगर हम सॉलिड्स को प्लेस करते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाए और सॉलिड को प्लेस करें वहां पे, तो सॉलिड्स क्लासिफाई होते हैं टोटल 5 ग्रुप्स में। सो नंबर फर्स्ट, आई विल राइट वन बाय वन। नंबर फर्स्ट जो क्लास है दैट इज paramagnetic substances. Number first is, we will take these one by one. Paramagnetic substances. Number second, we have
diamagnetic substances. Number third, we have ferromagnetic substances. Number four, we will discuss all these 5 types in detail. Number 4 is antiferro. This is antiferromagnetic substances. और number 5 है ferrimagnetic. Ferrimagnetic. तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ये सब्सटेंसेस होते क्या है? सो जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, ये वो सॉलिड्स या ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, अगर इन सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, आई विल राइट डाउन हियर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर इन सॉलिड्स को पैरामैग्नेट, रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि कहां से जनरेट होता है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो उसके बेसिस पे अगर हम सॉलिड्स को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो सॉलिड्स क्लासिफाई होते हैं 5 ग्रुप्स में: पैरामैग्नेटिक, डाया, फेरो, एंटीफेरो एंड फेरीमैग्नेटिक. सो नंबर फर्स्ट क्या है, इसको थोड़ा सा शॉर्टली एक्सप्लेन करते हैं. अगर हम देखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाते हैं या मैग्नेटिक लाते हैं या एक मैग्नेटिक फील्ड देते हैं बाहर, तो हम एक सॉलिड को लाते हैं. पैरामैग्नेटिक में कौन से आते हैं? अगर हम एक सब्सटेंस को, सच एज हमारे पास है कोबाल्ट, निकल, we have copper. These are generally called as transition metals or transition elements. These are transition elements. अगर इन जैसे सॉलिड्स को आप प्लेस करते हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, they are weakly attracted. तो ये सब्सटेंसेस जो है ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट और टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. वहां पे अट्रैक्शन होती है. क्यों? बिकॉज ये वो सब्सटेंसेस है जिनमें हमें पता है, ये वो एलिमेंट्स है जिनमें हमें पता है कि दे कंसिस्ट ऑफ या दे पोजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि इन सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मान लो ये डायरेक्शन है इन सॉलिड्स में से या इन एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन की, ये इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. सो अगर हमने प्लेस किया इनको मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ये है, तो ये सॉलिड्स जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स, जब इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं या वहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पास इनको ले जाते हैं, तो इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, याद रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करता है. इनकी वजह से या इसकी वजह से इनमें डेवलप होता है मैग्नेटिक बिहेवियर. और एक चीज याद रखनी है, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को या जैसे हम इन एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो इनमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर है या मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है. नंबर सेकंड, वी विल टेक दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? So next we have पैरामैग्नेटिक के बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर आप एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल वी हैव जिंक. सो जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
नहीं होता, सो जिंक possesses no unpaired electron। या अगर आप एग्जांपल दोगे सोडियम क्लोराइड की, तो अगर आप इन जैसे सब्सटेंसेस को प्लेस करोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो इनके पास नहीं होते, वो उस लिहाज से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं हो सकते। सो दीज पॉसेस नो मैग्नेटिक मूवमेंट, सो वी कॉल दीज आर weakly repelled by external magnetic field। So these are weakly repelled। तो इसमें से शॉर्ट सा है ये, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। So these are weakly repelled by external magnetic field। नंबर थर्ड जो हमारे पास टाइप है, नंबर थर्ड जो है, that is ferromagnetic substances। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये देखते हैं। अगर हम बात करें कुछ एलिमेंट्स जैसे कि निकल है, आयरन है, या गैडोलीनियम है Gd, और क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड CrO2, अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, तो इनके पास प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर इन एलिमेंट्स की बात करें, निकल है, आयरन है, गैडोलीनियम, क्रोमियम ऑक्साइड, इनमें प्रेजेंट होते हैं लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर इनमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है। सो जो इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक अलाइनमेंट फॉर्म करते हैं, वी कॉल दैट एज मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दैट्स व्हाई मैग्नेटिज्म नहीं होता या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। पैरामैग्नेटिक के पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपनी डायरेक्शन को अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उनमें भी डेवलप होता है मैग्नेटिज्म। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट्स जैसे कि निकल है, आयरन है, गैडोलीनियम है, या क्रोमियम ऑक्साइड है, इनमें प्रेजेंट होता लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर चीज फॉर्म करते हैं, वी कॉल दैट एज मैग्नेटिक डोमेन और डोमेन सिंपली। तो ये डोमेन होता ही है इसमें जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अपनी डायरेक्शन को एक ही तरीके से अलाइन करते हैं। सो दिस इज डोमेन, या आपने याद रखना, दिस इज मैग्नेटिक डोमेन। जैसे हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक, इन एलिमेंट्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ये डोमेन अलाइनमेंट करता है, इट अलाइंस विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये अपने आप को अलाइन करता है विथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। So we call these substances, we define these substances as the substances which are strongly attracted by the magnetic field। So ये substances strongly attract होते हैं by external magnetic field, even when the magnetic field is removed। जब magnetic field remove होता है फिर भी ये कुछ magnetic behavior show करते हैं। Suppose you have seen एक स्क्रू ड्राइवर होता है, जब हम स्क्रू ड्राइवर से अनस्क्रू करते हैं स्क्रूज को, तो फिर हम देखते हैं कि वहां पे वो स्क्रू जो है उसके साथ अटैच हो जाता है। दैट इज ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स। ये डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करता है, दैट इज व्हाई दैट पोजेसेस मैग्नेटिक बिहेवियर इवन व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो ये चीज आपने याद रखनी है। सो दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और फेनोमेनन को माना जाता है फेरोमैग्नेटिज्म। इसके बाद नंबर फोर्थ, we will take up number 4 type, that is
anti-ferromagnetic substances. Anti-ferromagnetic substances. So anti-ferromagnetic substances क्या होते हैं? जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, मैग्नीज ऑक्साइड MnO। अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड की बात करें या एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करें, तो इनमें जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, दीज पॉजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है, यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो दीज पॉजेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं इनके पास, लेकिन वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डोमेन्स सेट करते हैं या ऐसे डोमेन्स फॉर्म करते हैं जहां पे उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है एक दूसरे के अपोजिट होती है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। यहां डोमेन तो बनता है, इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक डोमेन तो बना, लेकिन इस डोमेन में जो अलाइनमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की वो अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ये इसको कैंसिल करेगा, सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। सो इनमें मैग्नेटिक मोमेंट नेट जो है वो होता है 0। एंड नंबर लास्ट टाइप इज फेरीमैग्नेटिक। फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दिस इज फेराइट ऑफ आयरन Fe3O4। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। डोमेन फॉर्मेशन यहां पे भी होती है, यह आपने याद रखना है। तो डोमेन फॉर्मेशन यहां पे भी होती है, लेकिन यहां जो डोमेन्स में इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होती है वो जो डोमेन्स में यहां पे वहां अगर आप याद करें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डोमेन में अलाइनमेंट इलेक्ट्रॉन्स की एक ही तरीके की थी। यहां एंटी फेरो में अलाइनमेंट अनइक्वल है, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल आउट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है दीज आर नॉट अट्रैक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बल्कि ये वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। सो बात करते हैं लास्ट फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। इसमें एग्जांपल मैंने आपको दी Fe3O4 दैट इज फेराइट ऑफ आयरन। तो अगर हम देखें यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, डोमेन फॉर्मेशन होती है, लेकिन जो बात आपने याद रखनी है यहां डोमेन में इलेक्ट्रॉन्स की जो अलाइनमेंट होती है दैट इज अनइक्वल। अनइक्वल, we call this as unequal orientation of electrons। इसे हम unequal orientation of electrons भी कहते हैं। सो यहां होगा क्या, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा दैट विल कैंसिल आउट। तो इसकी वजह से कैंसिल हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया और इस इलेक्ट्रॉन की वजह, बिकॉज दीज पॉजिशन अपोजिट स्पिन्स, तो इसकी वजह से भी कैंसिल होगा। लेकिन फिर भी यहां कैंसिल होने के बावजूद यहां कुछ नहीं रहता था, यहां कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं जो डेवलप करवाते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर। सो दीज आर सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये भी वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। तो डोमेन फॉर्मेशन यहां भी होती है, लेकिन अनइक्वल ओरिएंटेशन के साथ। यहां इक्वल ओरिएंटेशन के साथ नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0, और यहां अनइक्वल ओरिएंटेशन की वजह से कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। सो एक छोटी सी डेफिनेशन है, आई विल टेक अ शॉर्ट वाइल। ये थोड़ा सा एक छोटी सी डेफिनेशन है विच इज इंपॉर्टेंट। वन थिंग इज, डेफिनेशन का नाम है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर का मतलब है कि हमारे पास तीन जो तरीके के सब्सटेंसेस है दैट इज फेरोमैग्नेटिक, एक है एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक है फेरीमैग्नेटिक। अगर हम इन सब्सटेंसेस को ग्रेटर देन 8
850 केल्विन हीट करें, मतलब 850 केल्विन का टेम्परेचर देके आपने हीट करना है, these substances will convert into paramagnetic substances. So Curie temperature is the temperature by which ferromagnetic, antiferromagnetic and ferrimagnetic substances heating to a temperature above 850 Kelvin are converted into paramagnetic substances. तो इसमें एक एग्जाम्पल है Fe3O4. अगर इस Fe3O4 को हम हीट करते हैं ग्रेटर देन 850 केल्विन, अगर हम हीट करते हैं इसको ग्रेटर देन 850 केल्विन, it gets converted into paramagnetic substance.